Here I have a cup as my object. The mirror image will somewhat look like this. Object cup ka handle as well as image cup ka handle must face each other. And now placing them on the plane of board, mirror image confirm करने के लिए we can check for the relative distances of the object parts and the image parts with respect to mirror. I mean to say अगर real cup का handle mirror से x distance पर है तो image cup का handle भी mirror से x distance पर ही होना चाहिए. This concept of relative position will also help us in determining mirror images of organic compounds, which we'll delve later into. Now let's see how to superimpose the object's image onto the object itself. If you are trying to lift the image up, turn it 180 degree and then placing it on the object, then you are absolutely wrong. And I was too. Until I learned that जो image है उसे as it is superimpose करना है, not its turned form. Okay, so summing up these two crucial basics. Number 1, mirror image check करने के लिए relative position estimate करो and superimpose turn करके नहीं करते, directly करते हैं. So with this illustration, ये तो समझ आ गया होगा कि ये mirror image non superimposable है और इसी बात पे we have understood the concept of enantiomers, such optical isomers which are non superimposable mirror images of each other. Illustration number 2. Fish is our next object and now guess its mirror image. We can estimate it with its fin. Okay, so clearly ये image भी अपने ऊपर coincide या superimpose नहीं हो पा रही है, तो ये भी एक enantiomer हुआ. Illustration number 3. Glad that this scissor is not troubling us. It is smoothly superimposing upon itself. So mirror image which exactly coincide on itself are of course not enantiomers. They are identical isomers. Illustration number 4. Spectacles too form an identical image after superimposing. But what if I make a dot on the right glass of the object? Guess the image now. Image के left glass में dot दिखेगी because right glass of object is closer to the plane mirror. Conclusion ये है कि dot draw करके category of optical isomer change हो गया. So spectacles without dot were identical isomers, but जैसे ही मैंने dot draw करी वो turn हो गए enantiomers में. कैसे? क्योंकि object में जो dot थी वो उसके right glass पे थी, लेकिन जो image में dot है वो लेफ्ट क्लास पर है. तो जब मिरर इमेज को हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो जो फाइनल स्पेक्टिकल होगा उसमें जो डॉट होगी वो लेफ्ट क्लास पर होगी. तो ऐसा तो नहीं था ना ओरिजिनली ऑब्जेक्ट. विच लीड्स अस टू द कंक्लूजन दैट फॉर अ पेयर टू बी एनांशियोमर देयर शुड नॉट बी एग्जैक्ट कोइंसाइडिंग. Illustration number 5. I have converted the wedge dash representation of this compound into 3D form to help you imagine better. Object side chlorine and bromine groups are emerging out of the plane, like we represented in case of Ampere circuital law in physics. एम्पियर सर्किटल लॉ में अगर करंट आउट ऑफ द प्लेन आ रहा होता है तो हम इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनटू द प्लेन जा रहा होता है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं. सिमिलरली जो वेज होता है केमिस्ट्री में वो आउट ऑफ द प्लेन सिग्निफाई करता है यानी कि डॉट, और जो डैश होता है केमिस्ट्री में वो इनटू द प्लेन सिग्निफाई करता है यानी कि क्रॉस इन फिजिक्स. सो ऑब्जेक्ट साइड क्या हो रहा है? क्लोरीन और ब्रोमीन ग्रुप्स आर इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन. सो जो उनकी मिरर इमेज होगी ना इट विल बी समवॉट लाइक दिस, है ना. क्लोरीन और ब्रोमीन साइड इमर्ज हो रहे होंगे आउट ऑफ द प्लेन. अब हम क्या करेंगे, इस वाली इमेज को वील ट्राई टू सुपर इम्पोज इट ऑन द ऑब्जेक्ट साइड. ये तो कुछ और ही बन गया है. मतलब जो इनिशियली ऑब्जेक्ट था उस पर तो ऑर्थो पोजिशंस पर 2 साइड सब्सटीट्यूशंस थे क्लोरीन और ब्रोमीन के, बट अब तो 4 साइड सब्सटीट्यूशंस हो रहे हैं. Clearly the configuration in space has changed, so it is an example of optical stereoisomer as well as वो मिरर इमेजेस भी थे और सुपर इम्पोज नहीं हो पाए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाई है. सो दे आर एग्जाम्पल ऑफ एनांशियोमर्स. ठीक है. सपोज क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है बट राइट वाले स्ट्रक्चर में 1 ग्रुप बिलो द प्लेन दे दिया और 1 ग्रुप अबव द प्लेन दे दिया. सुपर इम्पोज करना सेकेंड स्टेप होती है. फर्स्ट स्टेप होता है चेक करना कि वो मिरर इमेजेस हैं या नहीं. अगर हम ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट साइड दोनों ग्रुप्स अबव द प्लेन है, लेकिन मिरर इमेज में एक ग्रुप अबव द प्लेन एंड एक ग्रुप बिलो द प्लेन. तो ये तो मिरर इमेजेस ही नहीं हुए. सो सच कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स. Stereoisomers which are not even mirror images of each other are diastereomers.
So I hope with these illustrations you were able to figure out the key difference between enantiomers, diastereomers and identical isomers. Now we'll solve 3 questions to clear our concepts better. But before that let me also tell you कि ये सब जो questions होते हैं इनको solve करने के 2 मेथड होते हैं. मेथड 1 जो अभी हमने देखा कि कैसे पहले मिरर इमेज फाइंड करते हैं रिलेटिव डिस्टेंस चेक करके, उसके बाद सुपर इम्पोज कराते हैं देखने के लिए कि वो एनांशियोमर है कि आइडेंटिकल आइसोमर है. बट ये जो मेथड होता है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, स्पेशली वेज डैश प्रोजेक्शन के केस में, क्योंकि उसमें हम एस्टिमेट नहीं कर पाते 3D में. तो फिर इसके लिए हमें मेथड 2 अप्लाई करना होता है जो कि RS नॉमेनक्लेचर का मेथड होता है. तो इसके लिए हमें कुछ CIP रूल्स आने चाहिए. और सेकंड, जब हमें पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बाद हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये पेयर एनांशियोमर होगा कि डायस्टीरियोमर होगा, इसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं. तो पहले हम वो ट्रिक्स सीखेंगे, उसके बाद हम लाइन वाइज क्वेश्चन 1, 2, 3 को सॉल्व करेंगे. मैं क्वेश्चन 1 दोनों मेथड से एक बार शो करूँगी, क्वेश्चन 2 और 3 हम सिर्फ मेथड 2 से सॉल्व करेंगे. मीजो कंपाउंड्स और रेसिमिक मिक्सचर के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करूँगी. Okay, so now we'll see how to identify enantiomers, diastereomers and identical isomers using RS nomenclature. So इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. टाइप 1 जिसमें एक कायरल सेंटर हो और टाइप 2 जिसमें 2 कायरल सेंटर्स हो. तो एक बार जब हम निकाल लेंगे RS nomenclature, फिर हम कैसे एस्टिमेट करेंगे कि कौन सा पेयर कौन सी कैटेगरी का आइसोमर होगा, वो हमें इन ट्रिक्स के थ्रू पता चलेगा. तो ऐसे ना फर्स्ट केस आता है, यहाँ पे जो मैंने प्लस साइन बनाया है वो एक्चुअली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सपोज कोई ग्रुप दिया होगा, सपोज यहाँ मिथाइल ग्रुप दिया है या फ्लोरीन दिया है, क्लोरीन दिया है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप दिया है, तो ऐसे कुछ दिया होगा. ठीक है, तो मान लो इस वाले कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन R आती है और सिमिलरली उसके जो दूसरा एक स्ट्रक्चर दिया है उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी R आती है. तो अगर RR दोनों साइड सेम आता है तो वो आइडेंटिकल होता है, या फिर उसी तरीके से SS आ सकता है. मतलब अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है तो फिर वो आइडेंटिकल आइसोमर्स हैं. नेक्स्ट केस क्या बनता है, सेम एक कायरल सेंटर में ही अगर एक कॉन्फ़िगरेशन R है और दूसरे स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन S है. ठीक है, तो इससे R और S से हमें ये पता लग जाता है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज है. ये बात कंफर्म हो जाती है जब डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आती है, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो ये कंफर्म होता है कि मिरर इमेज है. नोट, ये कंफर्म नहीं होता कि एनांशियोमर्स है, कंफर्म ये होता है कि वो मिरर इमेज है. अब हमें ये चेक करने के लिए कि वो एनांशियोमर्स हैं या नहीं, देखना पड़ता है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है, ना ही उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, ना उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए. ठीक है, अगर कोई एक तरीके की सिमेट्री भी उसमें मिल जाती है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है. ठीक है, और सिमेट्री नहीं मिलती तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. तो सिमिलरली तो इससे ये तो क्लियर हो जाएगा कि मिरर इमेजेस हैं. लेकिन उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, मान लो सिमेट्री निकल जाती है कंपाउंड में तो वो सीधा सीधा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा. बट अगर उसमें कोई सिमेट्री नहीं मिलती, ना प्लेन ऑफ सिमेट्री ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, फिर वो मिरर इमेज वाले जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे इनैंशियोमर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है, तो ये केस खत्म हो जाता है. अगर मान लो 2 कायरल सेंटर्स आए, इस कायरल सेंटर को हम इस कायरल सेंटर के साथ ही चेक करेंगे. ठीक है, सिमिलरली जो लोअर कायरल सेंटर है इसको हम इसके साथ ही चेक करेंगे. इस वाले कायरल कार्बन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन आई RR और नेक्स्ट वाले पे भी सेम आई, मतलब इस पे RR आई या फिर यहाँ भी RR आती. ठीक है, या फिर SS आ गई. मतलब दोनों कायरल कार्बन पे अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है, जिस कायरल कार्बन को हम देख रहे हैं और दूसरे को जो हम देख रहे हैं, अगर कॉरस्पॉन्डिंग कायरल कार्बन्स पे सेम कॉन्फ़िगरेशन आई है तो फिर वो आइडेंटिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, बोथ सेम. ठीक है, सेकंड केस ये बनता है कि एक पे R है, एक पे S, एक पे S है, एक पे R, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट का केस हो गया तो एनांशियोमर्स हो गया. सिमिलरली अगर सेम एक कायरल कार्बन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे कायरल कार्बन पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो वो डायस्टीरियोमर्स का केस होगा. ऑल राइट, सो इस क्वेश्चन में 3 कंपाउंड्स गिवन है और हमें फाइंड करना है कि कौन सा पेयर एनांशियोमर है, डायस्टीरियोमर है या फिर आइडेंटिकल कंपाउंड है. सो लेट्स फर्स्ट कंपेयर स्ट्रक्चर 1 and 2 बाय ड्राइंग अ मिरर इन बिटवीन. देखो, मॉलिक्यूल 1 में फ्लोरीन, इस वाले फ्लोरीन की और इस वाले फ्लोरीन की रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल नहीं है. मतलब यहाँ पे फ्लोरीन मिरर के पास है और स्ट्रक्चर 2 में फ्लोरीन मिरर से दूर है. वाइज जो लोअर पार्ट है वहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन की रिलेटिव डिस्टेंस इक्वल है. हाइड्रोजन की भी चेक कर सकते हैं. मतलब हम जस्ट ग्रुप्स की रिलेटिव डिस्टेंस चेक कर रहे हैं ये देखने के लिए कि वो आपस में मिरर इमेजेस हैं या नहीं है. तो फाइनली ये पता चला कि जो मॉलिक्यूल्स का अपर पार्ट है वो तो मिरर इमेज नहीं है, बट जो लोअर पार्ट है वो मिरर इमेज है. यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है. सो मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर डायस्टीरियोमर्स. नाउ लेट्स चेक पेयर 2 and 3. सो पेयर 2 और 3 के बीच में एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं. तो यहाँ पे फ्लोरीन और फ्लोरीन की रिलेटिव डिस्टेंस तो सेम है, बट मॉलिक्यूल 2 में हाइड्रोजन मिरर के क्लोजर है, बट मॉलिक्यूल 3 में हाइड्रोजन मिरर से दूर है. सिमिलरली मॉलिक्यूल 3 में क्लोरीन मिरर के पास है, बट मॉलिक्यूल 2 में क्लोरीन मिरर से दूर हो गया. नो मॉलिक्यूल 1 हम 2 और 3 पे फोकस कर रहे हैं अभी. 2 और 3 भी आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, नॉन मिरर इमेज, हेंस ये भी क्या हो गए, डायस्टीरियोमर्स. हम कंपाउंड 1 को 3 के साथ चेक करते हैं. इग्नोर मॉलिक्यूल 2.
देखो मॉलिक्यूल 1 में फ्लोरीन मिरर के पास है और मॉलिक्यूल 3 में भी फ्लोरीन मिरर के पास है। हम हाइड्रोजन को भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ क्लोरीन मिरर के पास है और यहाँ भी क्लोरीन मिरर के पास है। इसका मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर 3 को उठा के स्ट्रक्चर 1 के ऊपर सुपर इम्पोज करती हूँ या फिर स्ट्रक्चर 1 को उठा के स्ट्रक्चर 3 के ऊपर सुपर इम्पोज करती हूँ तो बिल्कुल ही नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बनाएंगे। तो वो कौन सा केस होता है जब मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज होती हैं? राइट, इनैंशियोमर्स। सो स्ट्रक्चर 1 एंड 3 क्या हो गए? इनैंशियोमर्स। ओके, सो मेथड 1 को फॉलो करके हमें ये पता चल गया कि पेयर 1 और 2 आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं, पेयर 2 और 3 भी आपस में डायस्टीरियोमर्स हैं, लेकिन पेयर 1 और 3 आपस में इनैंशियोमर्स हैं। अब हम मेथड 2 दैट इज़ आरएस नॉमेनक्लेचर की हेल्प से ये चेक करते हैं कि क्या हमें यही आंसर्स मिलते हैं नहीं। तो बेसिकली आरएस होता क्या है? तो यहाँ पे जो आर है ना दैट स्टैंड्स फॉर रेक्टस एंड जो एस है दैट स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब राइट साइड मूव करना है क्लॉकवाइज, और साइनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कायरल कार्बन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड 1 में कायरल कार्बन ही होगा। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना वो सब क्या है? कायरल कार्बन हैं। तो पहले हम उन्हें मार्क कर लेते हैं। अब हमें कायरल कार्बन से डायरेक्टली एसोसिएटेड ग्रुप्स को चेक करना है। तो कौन कौन से ग्रुप्स हैं यहाँ पे? फ्लोरीन, मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और ये पूरा ग्रुप। ठीक है, तो हमने कायरल कार्बन फाइंड आउट कर लिया। अब हम उसके बाद चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर कौन से ग्रुप का है। तो यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका हो गया? फ्लोरीन का। अब नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होगा? कार्बन का। तो यहाँ पे भी कार्बन है और इस साइड भी कार्बन है, लेकिन बाय कॉमन सेंस यहाँ पे कार्बन से इतने सारे ग्रुप्स एसोसिएटेड हैं तो ऑब्वियसली इसका ओवरऑल एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम नंबर 2 देंगे, मिथाइल ग्रुप को नंबर 3 देंगे और नंबर 4 इस लोअर प्रायोरिटी ग्रुप दैट इज हाइड्रोजन को मिल जाएगा। अब हमें 1 से 2, 2 से 3 मूव करना है। इसमें अगर फोर्थ ग्रुप क्रॉस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें मूव 1, 2 और 3 ऐसे मूव करना है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 3। अब ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? तो ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो आता है आर। लेकिन वेट, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अभी हमें थर्ड रूल दैट इज एलपीजी को भी चेक करना है। एलपीजी मतलब क्या होता है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? ये जो मैंने एक मिनट, जो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉन्ड्स बनाए हैं इसे हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा प्रोजेक्शन होता है वेज डैश, जो दूसरा क्वेश्चन उस पर ही बेस्ड होगा। तो पहले हम फिशर प्रोजेक्शन चेक कर लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे होता है ना तो हम कॉन्फ़िगरेशन पलट देते हैं। मतलब अगर आर आ रही हो तो एस कर देते हैं और अगर एस आ रहा हो तो आर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वर्टिकल बॉन्ड पर ही होता है लोअर प्रायोरिटी ग्रुप तो कोई चेंज नहीं आता। मतलब हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा वर्टिकल बॉन्ड पे होना चाहिए इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन में। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन आई होती है उसको चेंज कर देते। तो आर ना हो के क्या हो जाएगी? एस हो जाएगी। नाउ लेट्स चेक द लोअर कार्बन। तो इससे एसोसिएटेड ग्रुप्स कौन कौन से हैं? क्लोरीन, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ पे पूरा ग्रुप। ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है 17, तो इसको हम नंबर 1 देंगे। नेक्स्ट जो हम नंबर देंगे नंबर 2 वो इथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 और यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन कार्बन से एसोसिएटेड यहाँ पे इतने सारे ग्रुप्स हैं तो बाय कॉमन सेंस इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 3 मिलेगा और इसको नंबर 4 मिलेगा। तो कैसे मूव करेंगे? 1 से 2, 2 से 3। तो ये क्या हो गया? ये इस बार क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया है तो फिर ये हो जाएगा एस। लेकिन अभी थर्ड रूल भी रहता है। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमें एलपीजी की पोजीशन चेक करनी है। एलपीजी यहाँ पे अगेन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है तो ये एस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? इट इज़ आर। ओके, सो बिल्कुल सिमिलर मैनर में हमें मॉलिक्यूल 2 और मॉलिक्यूल 3 की कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल 2 के अपर कायरल कार्बन को चेक करते हैं। तो फ्लोरीन को नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2, इसको 3, इसको 4। जैसे ये था ना बिल्कुल वैसे, तो सेम इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या क्या आ गई? एस। ठीक है, अब लोअर कायरल कार्बन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज है। तो नंबर 1 क्लोरीन को मिलेगा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, नंबर 2 इसको क्योंकि इससे एसोसिएटेड ग्रुप्स बहुत सारे हैं इस कार्बन से एसोसिएटेड, फिर नंबर 3 इथाइल ग्रुप को, नंबर 4 इसको। तो यहाँ पे हम कैसे मूव करेंगे? 1 से 2, 2 से 3। ओके, सो ये क्या आ गया? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? आर होता है। बट यहाँ पे थर्ड रूल के अकॉर्डिंग लोअर प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल बॉन्ड, बट यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है तो आर ना होके क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। डन। अब हम मॉलिक्यूल 3 को चेक करते हैं। तो दिस इज आर कायरल कार्बन,
तो नंबर 1 किसको मिलेगा, फ्लोरीन को, नंबर 2 इस वाले ग्रुप को, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। तो यहाँ पे हम चलेंगे 1 से 2, 2 से 3, फोर्थ को क्रॉस करना भी पड़े तो कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है एस, बट क्या ये सच में एस होगा, नहीं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है, तो एस ना होके क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। नाउ चेकिंग द लोअर कार्बन, नंबर 1 क्लोरीन को मिलेगा, नंबर 2 इसको मिलेगा, यहाँ से रिमूव कर देते हैं 2, यहाँ पे 3 इसको, 4 इसको, तो यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3, कैसे चल रहे हैं हम, क्लॉकवाइज। तो जब भी क्लॉकवाइज चलते हैं होता क्या है, आर होता है, बट यहाँ पे भी हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है जो कि रॉन्ग है, तो आर ना होके क्या हो जाएगा, एस। तो एक बार हम अब सबकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ओके, सो लेट मी सम अप ऑल दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। सो मेथड 2 में हमने देखा कि आर एस नॉमेनक्लेचर में आर स्टैंड्स फॉर रेक्टस, दैट इज क्लॉकवाइज, और राइट साइड मूव कर रहे हैं ना हम, क्लॉकवाइज मूव करते हैं, तो आर स्टैंड्स फॉर रेक्टस, दैट इज क्लॉकवाइज, एंड एस स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। तो आर एस नॉमेनक्लेचर निकालने से पहले हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें कायरल कार्बन फाइंड आउट करना होगा। तो जैसे इन सब मॉलिक्यूल्स में जो कि फिशर प्रोजेक्शन है, इसमें जो कायरल कार्बन है वो सब इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, बट ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कायरल कार्बन है वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, ठीक है। तो कायरल कार्बन फाइंड आउट करने के बाद हमें उससे एसोसिएटेड डायरेक्टली जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें चेक करना होता है, और एटॉमिक नंबर वाइज उन्हें प्रायोरिटी असाइन करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले कार्बन में जो नंबर 1 प्रायोरिटी का ग्रुप था वो फ्लोरीन हो गया, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। फिर लेकिन नेक्स्ट केस में हम अटक गए थे कि नंबर 2 इसको दें या इसको दें। जब ऐसा केस आ जाए फिर हमें उस पर्टिकुलर ग्रुप से एसोसिएटेड नेक्स्ट ग्रुप चेक करने होंगे। फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप में इस कार्बन से एसोसिएटेड जो नेक्स्ट ग्रुप्स है वो हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो इस कार्बन से एसोसिएटेड है वो हाइड्रोजन, इथाइल और क्लोरीन ग्रुप है। तो बाय कॉमन सेंस ये सारे ग्रुप्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, तो नंबर 2 हम इसको दे देंगे, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। उसके बाद हमें 1 से 2, 2 से 3 की तरफ मूव करना होगा। उसमें अगर फोर्थ ग्रुप क्रॉस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें मूव 1 से 2, 2 से 3 करना है। जब हम मूव कर रहे होंगे फिर हमें डायरेक्शन चेक करनी है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो फिर रेक्टस मतलब आर, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। लेकिन वो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, क्योंकि थर्ड रूल के अकॉर्डिंग हमें LPG दैट इज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप की पोजीशन भी चेक करनी होगी। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे होगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो इन्वर्ट हो जाएगी। अगर आर है तो एस, एस है तो आर, ठीक है। तो हमेशा जो फिशर प्रोजेक्शन होता है उसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो हमेशा वर्टिकल बॉन्ड पे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम इन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से हमने फाइंड आउट करा कि जो मॉलिक्यूल 1 है उसकी कॉन्फ़िगरेशन SR आई है, मॉलिक्यूल 2 की SS आई है, और मॉलिक्यूल 3 की RS आई है, ठीक है। तो अब जो हमने रूल्स पढ़े थे कि हमने जो ट्रिक्स देखी थी ना कि जब 2 कायरल सेंटर्स का केस हो तो कैसे पता लगाते हैं कौन सी कैटेगरी का आइसोमर है, तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। एक बार हमने RS नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट कर लिया, अब हमें चेक करना है। देखो सबसे पहले हम 1 और 2 को देखते हैं। तो 1 में देखो इस वाले कायरल कार्बन ऐसा है, इस वाले पे भी ऐसा है, तो इस वाले कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। नेक्स्ट वाले की चेक करते हैं, जो फाइनल आई थी वो R थी ना, और इस वाले की जो फाइनल आई थी वो S थी। R और S डिफरेंट हो गए। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो दूसरे की डिफरेंट हो तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, राइट, नॉन मिरर इमेजेस मतलब डायस्टीरियोमर्स। तो S और R क्या हो गए, डायस्टीरियोमर्स, और जो मेथड 1 के अकॉर्डिंग हमने देखा था वो डायस्टीरियोमर्स ही आए थे, मतलब हमने सही लगाया RS नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूल 2 और 3 को देखते हैं। मॉलिक्यूल 2 में फर्स्ट कायरल कार्बन, मॉलिक्यूल 3 का भी जो फर्स्ट कायरल कार्बन है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन आई है वो डिफरेंट आई है, SNRC, S और R डिफरेंट आई है। बट जो सेकंड कायरल कार्बन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आई है, S और S मतलब सेम। तो यहाँ पे एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, एक की सेम है, तो एक किस कैटेगरी में आ गई, ये भी डायस्टीरियोमर्स की कैटेगरी में आ गए। तो 2 और 3 भी डायस्टीरियोमर्स। अब चेक करते हैं 1 और 3। तो देखो 1 में इस कायरल कार्बन की S, इसकी क्या आ गई R, इसकी R और इसकी S, मतलब बिल्कुल डिफरेंट है दोनों कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशंस आपस में डिफरेंट है, इसकी SR और इसकी भी RS। तो जब डिफरेंट हो जाता है देखो SR और RS, तो जब ऐसा केस होता है तो ये केस में आता है एनांटियोमर्स में। तो मेथड 1 और 2 दोनों के अकॉर्डिंग हमारा सेम आंसर आया, लेकिन हमेशा एग्जामिनेशंस में हमें मेथड 2 फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो एक्यूरेट भी होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So first of all, let's see the difference between Fisher and wedge dash projection. So Fisher is basically a 2D form of representation of an organic molecule, and wedge dash is a 3D form of representation. So Fisher projection में basically एक particular molecule horizontal और vertical bonds की form में given होता है, और wedge dash projection में फॉर एग्जाम्पल इस साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इस कार्बन से एसोसिएटेड जो ग्रुप है वो डार्क इन फॉर्म में अगर ऐसे गिवन है तो वो क्या हो जाएगा वेज, और अगर सेपरेटेड लाइंस की फॉर्म में गिवन है तो वो क्या हो जाएगा डैश।
Wedge means out of the plane, which is represented by dot in case of physics, and dash implies into the plane, which is represented by cross in case of physics. ठीक है, तो आर एस रूल्स के अकॉर्डिंग जो एल पी जी है दैट इज लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, इट शुड बी ऑन द वर्टिकल बॉन्ड इन केस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन, एंड in case of wedge dash projection it should be on the, that is LPG should be on the dash part. अगर ऐसा नहीं होता, मतलब LPG अगर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है या फिर अगर LPG वेज पर है, तो R का S हो जाता है और S का R. ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि वेज डैश की फॉर्म में गिवन है. ठीक है, तो कायरल कार्बन से स्टार्ट करते हैं. तो ये कायरल कार्बन है, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमको दिखाई दे रहे हैं ये सब कायरल कार्बन होंगे. ठीक है, तो मॉलिक्यूल 1 में फर्स्ट कायरल कार्बन को चेक करते हैं. नंबर 1 प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्लोरीन को, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर. नेक्स्ट में देखो यहाँ पे भी कार्बन आ रहा है, इस साइड भी कार्बन आ रहा है, तो अब किसको दें? तो सी, यहाँ पे जो कार्बन आ रहा है इससे एसोसिएटेड जो ग्रुप्स हैं दैट इज ब्रोमीन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे हिडन ग्रुप क्या होगा? हाइड्रोजन. वो ज़्यादा है एटॉमिक नंबर क्या है ना, तो नंबर 2 हम इसको दे देंगे, नंबर 3 इसको मिल जाएगा, और नंबर 4 यहाँ पे जो देखो हिडन ग्रुप होगा, अगर ये वेज की फॉर्म में है क्लोरीन, तो बाय कॉमन सेंस जो हाइड्रोजन होगा वो डैश की फॉर्म में होगा, तो इसको नंबर 4 मिल जाएगा. तो कैसे मूव करेंगे? 1 से 2, 2 से 3. अगर 4 को क्रॉस भी करना पड़े तो कर देंगे. सो ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज. तो जब क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है? आर होता है. बट अब हम एच की पोजीशन को पहले चेक कर लेते हैं. एच ना डैश पे होना चाहिए, तभी आर का आर रहेगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा. तो एच यहाँ पे डैश पे ही है तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे आर का आर हो जाएगा. ठीक है, अब हम पार्ट 2 देखते हैं इसी मॉलिक्यूल का, मतलब कायरल कार्बन 2. तो यहाँ पे अभी इसको 1 मिनट. हाँ, तो नंबर 1 किसको मिलेगा? यहाँ पे देखो एक पूरा ग्रुप ही हो गया, इस वाले कायरल कार्बन के लिए एक पूरा ग्रुप ही हो गया और एक पूरा ग्रुप ही हो गया. तो ब्रोमीन का तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हो जाएगा, तो ब्रोमीन को नंबर 1 मिल जाएगा. नेक्स्ट कार्बन यहाँ पे भी है, कार्बन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कार्बन से ज़्यादा ग्रुप्स जुड़े हैं, तो यहाँ पे नंबर 2 मिल जाएगा, यहाँ पे नंबर 3, और यहाँ पे देखो यहाँ पे डैश पे ब्रोमीन है, इसका मतलब वेज पे क्या होगा? वेज पे यहाँ पे हाइड्रोजन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे मूव करेंगे? 1 से 2, 2 से 3. तो ये हम कैसे मूव करें? आर क्लॉकवाइज. लेकिन क्या ये सही में आर होगा? नहीं, आर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एच है दैट इज ऑन वेज, बट एच जो होना चाहिए वो डैश पर होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है ना. तो आर ना होके क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? आर एस. अब हम बिल्कुल सेम तरीके से मॉलिक्यूल 2 और मॉलिक्यूल 3 को भी चेक करेंगे. सो अब हम मॉलिक्यूल 2 के कायरल कार्बन को चेक करते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला कायरल कार्बन ना बिल्कुल इसकी तरह है. सी, यहाँ पे भी क्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पर भी, इस साइड मिथाइल ग्रुप था, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, एंड ये पूरा ग्रुप एक साथ, ये पूरा ग्रुप एक साथ, तो सेम ही तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई, तो ये बिल्कुल सेम आर आ जाएगा. तो डबल डबल कैलकुलेट करने की नीड नहीं, अगर एक का फाइंड आउट कर लिया दूसरे का भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं. अब हम इस वाले कायरल कार्बन को चेक करते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो ब्रोमीन था वो डैश पर था, बट यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो वेज पर है. इसका मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन होगा, जो हिडन हाइड्रोजन होगा ना, वो यहाँ पे कैसे होगा? डैश में प्रेजेंट होगा. तो देखो नंबर 1 हम ब्रोमीन को देंगे, नंबर 2 इस वाले ग्रुप को क्योंकि ये ज़्यादा एटॉमिक नंबर का है, नंबर 3 इस वाले कार्बन को, और नंबर 4 इस ग्रुप को. तो अब हम कैसे मूव करेंगे? 1 से 2, 2 से 3. कैसे मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज. और हाइड्रोजन यहाँ पे डैश पे प्रेजेंट है, जो कि बिल्कुल सही है, और क्लॉकवाइज क्या होता है? आर होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? आर हो गई, और इस वाले कार्बन की भी आर हो गई. अब हम मॉलिक्यूल 3 के देखते हैं. सो मॉलिक्यूल 3 में इस वाले कार्बन की चेक करते हैं पहले. तो अगर ध्यान से देखो इस वाले से कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया ना, तो आसान हो जाएगा कंपेयर करना. तो देखो यहाँ पर ये आर आया था क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन वेज पे था, यहाँ पे क्लोरीन कैसा है? डैश पे है, तो ऑपोजिट हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा. लाइकवाइज हम इस वाले का इससे कंपेयर कर सकते हैं, ये और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी. मतलब मैं वैसे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल नहीं कह रही, मैं कॉन्फ़िगरेशन कह रही हूँ, मतलब आर और एस. तो यहाँ पे एस क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन डैश पे था, यहाँ पे ब्रोमीन डैश पर है, तो यहाँ पे भी ऐसा आ गया. ठीक है, तो हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर मॉलिक्यूल 2 और 3 का भी पता लग जाएगा. तो फाइनली जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस निकल के आई ना, वो कुछ ऐसे है: आर एस, देन वी हैव आर आर, और फिर है हमारे पास एस एस. सो नाउ लेट मी सम अप द एंटायर क्वेश्चन वंस अगेन. तो ये क्वेश्चन वेज डैश प्रोजेक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि द एलपीजी शुड बी ऑन द डैश पार्ट. जैसे फिशर प्रोजेक्शन के केस में एलपीजी शुड बी ऑन द वर्टिकल पार्ट, हेयर इन दिस केस इट शुड बी ऑन द डैश पार्ट. ठीक है, तो मॉलिक्यूल 1 की जब हमने नॉमेनक्लेचर फाइंड आउट करी तो वो आर एस आई, मॉलिक्यूल 2 की आर आर, और मॉलिक्यूल 3 की एस एस. अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग कायरल कार्बन्स को कंपेयर करेंगे. तो सी, ये वाले कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दैट इज़ आर आर, बट इस वाले कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, दैट इज़ एस आर. तो ये आपस में नॉन मिरर इमेजेस हो गए और डायस्टीरियोमर्स हो गए. ठीक है, अब मॉलिक्यूल 2 और 3 को चेक करते हैं. ओके, सो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन आई है वो टोटली डिफरेंट आई है, आर एस आर एस.
ठीक है, तो इनैंशियोमर्स का केस हो गया। लेकिन फॉर अ कन्फर्मेशन हम ये भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सिमेट्री है या नहीं है, क्योंकि आर और एस डिफरेंट आने से ये क्लियर होता है कि वो आपस में मिरर इमेजेस है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि इनैंशियोमर्स है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करते हैं तो हम देखेंगे कि इसके अबाउट मॉलिक्यूल बिल्कुल भी सिमेट्रिकल है। यहाँ ब्रोमीन ग्रुप है, यहाँ क्लोरीन ग्रुप है, तो सिमेट्रिकल तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कोई नहीं है। अगर इस पॉइंट से हम इस साइड जाके देखें तो यहाँ क्लोरीन आ रहा है, इस साइड जाएंगे तो ब्रोमीन। एटलीस्ट ग्रुप्स तो सेम होने चाहिए थे ना सिमेट्री के लिए, तो ये बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है। सिमिलरली अगर हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे भी कोई सिमेट्री नहीं है, दोनों डैश पर और दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है, आपस में मिरर इमेजेस हैं, कॉन्फिग्रेशन भी डिफरेंट है, तो ये क्लियरली इनैंशियोमर्स है। अब हम मॉलिक्यूल 1 और 3 को चेक करते हैं। तो मॉलिक्यूल 1 में इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन की कॉन्फिग्रेशन बिल्कुल डिफरेंट है, RS ऑपोजिट कॉन्फिग्रेशन, लेकिन इस वाले कायरल कार्बन की सेम है, दैट इज SS। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? अगर एक कायरल कार्बन की कॉन्फिग्रेशन सेम हो और दूसरे की डिफरेंट हो तो वो भी डायस्टीरियोमर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मॉलिक्यूल 1 और 3 भी डायस्टीरियोमर्स हो गया, मॉलिक्यूल 2 और 3 enantiomers और मॉलिक्यूल 1 and 2 diastereomers. Alright, so now moving on to our next important concept, that is the difference between racemic mixture and meso compound. तो रेसमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड्स ना दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ना फर्क नाम में ही है। रेसमिक मिक्सचर होता है और मीजो कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर एक मिरर हम ड्रॉ करते हैं और अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे RS नहीं, इसमें हम नॉर्मली भी देख सकते हैं। सी यहाँ पे OH मिरर के क्लोज है और यहाँ पे भी OH मिरर के क्लोज है। लाइकवाइज क्लोरीन भी दोनों मिरर के क्लोज हैं, यानी कि ये बिल्कुल इसकी मिरर इमेजेस को अगर फिर इसको अगर हम सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करेंगे इस पर, तो सुपर इम्पोज नहीं होगी, क्योंकि ये OH इसके ऊपर चला जाएगा, ये क्लोरीन इस H के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिरर इमेजेस हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि किस में आ गए, इनैंशियोमर्स की कैटेगरी है। तो क्या होगा कि सपोज ये वाला कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है फॉर एग्जांपल। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है, इसको कहाँ रोटेट करेगा, लेफ्ट में, मतलब लेवो रोटेटरी। तो अगर एक कंपाउंड लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है और एक कंपाउंड लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, ओवरऑल जो मिक्सचर है उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देगा। तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, इसे हम रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। सो ऐसे पर्टिकुलर आइसोमर्स या ऐसे कैटेगरी के आइसोमर्स जो एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर प्रोवाइड करे, उन्हें हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट हो रही है। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट है, दोनों इंडिविजुअली लाइट को रोटेट कर रहे हैं, बट जब हम इन्हें मिक्स करते हैं तब जाके मिक्सचर को ऑप्टिकली इनएक्टिव करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल कंपनसेशन हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का। PPL इज प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, लेकिन अब हम मीजो कंपाउंड्स को चेक करते हैं। तो मीजो कंपाउंड्स में क्या होता है, ये एक ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर का पार्ट और इसके नीचे का पार्ट बिल्कुल एक्जैक्टली सिमिलर है। OH के नीचे OH, H के नीचे H, और बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे मिथाइल ग्रुप है एक दूसरे से। तो यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए या सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, यानी कि। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये पार्ट तो कायरल था और ये पार्ट भी कायरल था, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। तो ऊपर का पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव था और नीचे का पार्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव था, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यानी कि ये अगर लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, या फिर वाइस वर्सा, कैसे भी कह सकते हैं, वो हमें नहीं पता, वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगता है कि कैसे रोटेट होती है लाइट। बट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर एक पार्ट लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है तो दूसरा पार्ट लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी वो जीरो हो जाएगी, जो नेट रोटेशन हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो ये किसका केस हो गया, ये मीजो कंपाउंड्स का केस हो गया, क्योंकि इसमें विद इन द मॉलिक्यूल इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल कंपनसेशन हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का। लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ द मॉलिक्यूल हो रहा है ना, पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल ये, ओवरऑल मॉलिक्यूल ये। अगर हम यहाँ पे सिमेट्री देख रहे हैं, कोई सिमेट्री नहीं। यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसे प्लेन ड्रॉ कर देती हूँ तो देखो यहाँ पे OH आ रहा है, बट यहाँ क्लोरीन, तो मतलब ये कोई सिमेट्री थोड़ी, यहाँ पे ग्रुप से डिफरेंट हो गए, है ना। तो यहाँ पे कोई प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री था। तो मीजो कंपाउंड से बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ओके, सो नाउ लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, विल एन एनांशियोमेरिक पेयर फॉर्म अ रेसिमिक मिक्सचर? वेल दैट्स ट्रू। मैंने जो यहाँ पे आपको पेयर शो करा था वो एक एनांशियोमेरिक पेयर ही था। मिरर इमेजेस विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर्म्स एन एनांशियोमेरिक पेयर। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक बॉक्स है,
उसमें ये मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और उसमें ये मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, और जब हम उसको एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं तो देखते हैं कि नेट रोटेशन जो लाइट की आ रही है वो जीरो है, मतलब लाइट ना राइट साइड रोटेट हो रही है ना लेफ्ट साइड। तो ओवरऑल कंपाउंड हमें पता लग गया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट अगर हम इंडिविजुअली, सपोज मैंने ये मॉलिक्यूल उस बॉक्स से बाहर निकाला, तो मैं इंडिविजुअली देख पा रही हूँ कि लाइट को रोटेट कर रहा है लेफ्ट साइड और ये वाला लाइट को रोटेट कर पा रहा है राइट साइड। तो इंडिविजुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहे हैं, बट मिक्सचर में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहे हैं। तो ये एग्जांपल है रेसिमिक मिक्सचर का, एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ लाइट होती है। बट मीजो कंपाउंड पर्टिकुलरली एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है। मीजो से आप याद रख सकते हो मॉलिक्यूल, बट रेसिमिक मिक्सचर है तो मिनिमम 2 मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही। ठीक है, तो मीजो में क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन ऑफ लाइट होती है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, which will include all the concepts we have learned till now. But before that, I would advise you to pause the video as the question arrives and try to find all the possible categories of isomers without any help, and then proceed on to verify your answer with my solution. Okay, so now we'll solve our last and final question, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, आरएस नॉमेनक्लेचर के रूल्स, उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे फाइंड आउट करके डिटेक्ट करते हैं कि आरएस आने के बाद क्या होगा, एसएस आने के बाद कौन सा कैटेगरी का आइसोमर होगा, इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, आइडेंटिकल आइसोमर्स, रेसिमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कंपाउंड 1 से स्टार्ट करते हैं। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके अराउंड सारे ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। सो हमारा कायरल कार्बन क्या होगा, ये हो गया। तो एक साइड ग्रुप क्या है, OH है, एक साइड ग्रुप COH है, एक साइड H है, इस कायरल कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, और एक साइड ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा। ठीक है, तो नंबर 1 किसको देंगे, अब रूल 2 के अकॉर्डिंग हमें प्रायोरिटी असाइन करनी है ग्रुप्स को अटोमिक नंबर वाइज। तो हाईएस्ट अटोमिक नंबर किसका है, कंपेयर करो डायरेक्टली अटैच्ड एटम को। यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी कार्बन। तो नंबर 1 तो इसको ही मिल जाएगा, हाईएस्ट अटोमिक नंबर ऑक्सीजन। ठीक है, अब नंबर 2 हम इस वाले कार्बन को दें कि इस वाले कार्बन को दें, वही सेम कन्फ्यूजन आ चुकी है। तो नंबर 2 हमें उस कार्बन को देना होगा जिसके अराउंड हायर अटोमिक नंबर के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। नंबर ऑफ ग्रुप ज़्यादा नहीं है, जिसके अराउंड हाई एटॉमिक नंबर के ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। सो अगर आप शुरू में जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मैंने भी गलती कर दी थी, मैंने नंबर 2 उसको दे दिया था देख कर कि यहाँ पे ग्रुप ज़्यादा है, लेकिन हम ज़्यादा ग्रुप्स नहीं, हम ज़्यादा एटॉमिक नंबर के ग्रुप्स देखते हैं। ठीक है, तो सपोज पहले इसको खोलते हैं। अगर आप COH को खोल के लिखोगे चेक करने के लिए, तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो कार्बन से डायरेक्टली जॉइंट एटम्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, मतलब दोनों साइड ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम इस वाले कार्बन को देखते हैं, इसके अराउंड कौन कौन से अटैच्ड हैं। सो ये कार्बन है, और सपोज ये पूरा ग्रुप जो है, इसको फॉर एग्जांपल हम A मान लेते हैं। ठीक है, तो A ग्रुप यहाँ जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है इसके OH ग्रुप, यहाँ पे H, और यहाँ पे जुड़ा है C डबल बॉन्ड O OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इस तरीके से खोल के लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो, तो इस कार्बन के जो से डायरेक्टली जो जुड़ा है वो ऑक्सीजन यहाँ पर, और यहाँ पे कार्बन, और इसको देखो तो यहाँ पे कार्बन से दोनों साइड ऑक्सीजन जुड़ा है। तो ज़्यादा हाई एटॉमिक नंबर के ग्रुप्स कौन से वाले हो गए, जो इस कार्बन के अराउंड है। सो हम इस वाले कार्बन को नंबर 2 को देंगे, ना कि इस वाले कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के पास एक तो कार्बन है लो एटॉमिक नंबर का, और एक मतलब एक ऑक्सीजन एक कार्बन। हाइड्रोजन को तो हम क्या ही देखें, तो लोवेस्ट एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो हम कार्बन ऑक्सीजन को ही देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साइड ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक साइड ऑक्सीजन एक साइड कार्बन है, तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा नहीं पता लग पाता है तो खोल के भी देख सकते हो ग्रुप्स को। अगर आपको इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन हुई कि कैसे हमने नंबर 2 डिसाइड करा कि कौन से कार्बन को देना चाहिए, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा कैसे प्रायोरिटी असाइन करते हैं। तो यहाँ पे चेक करो, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम्स को चेक करो। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब पहले हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम देखो, तो यहाँ पे OH ऐसे लिखा है, बट जब जुड़ा होगा इससे तो ये O पहले होगा और H बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है। ठीक है, नेक्स्ट हाईएस्ट एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है क्लियरली। अब हम थर्ड और फोर्थ ग्रुप में अटक चुके हैं कि थर्ड नंबर किसको दें, है ना, इनमें से। तो देखो यहाँ पे इनको खोल के देखो, यहाँ पे CHO है, तो देखो यहाँ पे इससे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो एक साइड ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन के, एक साइड H जुड़ा है। अब इस वाले ग्रुप को खोल के देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे दोनों साइड ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि अगर डायरेक्टली अटैच एटम में टाई हो जाए, ठीक है, सेम एटम आ गया, तो हम उससे एसोसिएटेड डायरेक्टली एटम्स जो जुड़े हैं उन्हें देखते हैं, फिर मतलब लाइन वाइज चलते हैं।
पहले हमने इससे डायरेक्टली अटैच एटम को देखा, जब इनमें टाई हो गया फिर हमने नेक्स्ट एटम्स को चेक किया। तो यहाँ पे नेक्स्ट एटम्स में दोनों साइड O था, इस वाले कार्बन के ये ऑक्सीजन है, और इस वाले एटम के विद रिस्पेक्ट टू देखा तो एक साइड O एक साइड H। तो अब देखो कि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसको मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों साइड ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन का तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है। देखो ये पार्ट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे H आ रहा है, यहाँ पे OH आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसको नंबर 3 दे देंगे। इस पूरे ग्रुप को नंबर 3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हायर एटॉमिक नंबर के ग्रुप्स जुड़े हैं, जो कि दोनों साइड ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पे एक साइड ऑक्सीजन है एक साइड H है। तो अब एक और एग्जाम्पल ऐसा करते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। लेकिन एक बार देख लेते हैं कैसे मूव करेंगे। ठीक है, तो थर्ड नंबर इसको मिल गया, फोर्थ नंबर इसको मिल जाएगा। तो कैसे मूव करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, इस टाइप से। अब जो भी आया क्या आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एस होता है। लेकिन अब हमें लो प्रायोरिटी ग्रुप की पोजीशन चेक करनी पड़ेगी। तो देखते हैं लो प्रायोरिटी ग्रुप क्या था। यहाँ पे CHO है सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और वो वर्टिकल बॉन्ड पे लाई कर रहा है, और ठीक भी है, वर्टिकल बॉन्ड पे लाई करने चाहिए फिशर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका ऐसे ही रहेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा होता तो इसका आर हो जाता। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा H ही हो। अभी तक हम जो क्वेश्चंस देख रहे थे सब में हाइड्रोजन ही आ रहा था, बट वो कोई और भी हो सकता है। ओके, सो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा और टिपिकल है। तो देखो नंबर 1, देखिए कायरल कार्बन हो गया। ठीक है, सारे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, एक साइड मिथॉक्सी ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोक्साइड, एक साइड फ्लोरीन, और एक साइड 2 डिग्री अमाइन। तो पहले हम नंबर 1 प्रायोरिटी वाला ग्रुप ढूंढते हैं। तो देखो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कार्बन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका हो गया, फ्लोरीन का हो गया, तो उसको तो नंबर 1 दे देंगे, इसका काम खत्म। अब 2 में फिर से कंफ्यूजन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ टाई हो चुका है। जब टाई हो चुका है तो फिर नेक्स्ट एटम को चेक करेंगे। नेक्स्ट एटम क्या है, पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे नेक्स्ट एटम क्या है, जस्ट बाद इसके कार्बन। तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन और कार्बन में किसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, कार्बन का, तो इसको नंबर 2 दे देंगे, इसको नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये फ्लोरीन को हमने नंबर 1 दे दिया था, ऑक्सीजन में टाई हो गया था। अब नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कुछ लोगों की, डायरेक्टली इस लाइन से, मतलब इस कार्बन से डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है, क्या वो कार्बन है कि नाइट्रोजन है। तो अगर इसको हम खोल के लिखें, कभी बार कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से दे देते हैं, लेकिन अगर हम CH3NH को खोल के लिखें तो ये कुछ ऐसा होगा, इससे डायरेक्टली जुड़ा है N, यहाँ पे था मतलब ऐसे कर लो इसको, यहाँ पे था CH3 और यहाँ पे था हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। क्यों, क्योंकि इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, इसका मतलब नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन। तो नाइट्रोजन का क्या होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया, तो इसको क्या दे देंगे, नंबर 4। वैसे 4 की नीड नहीं होती फाइंड आउट करने की, क्योंकि हमें 1, 2, 3 ही फाइंड आउट करने होते हैं, 4th जो बच जाता है ऑटोमेटिकली वही हो जाएगा। बट एक बार फिर से मतलब देखने के लिए कि कौन सा अटैच था, तो हमने चेक कर लिया। ठीक है, अब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 से 2, 2 से 3, कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, आर होता है। लेकिन एक बार लो प्रायोरिटी ग्रुप की पोजीशन देख लेते हैं, जो कि ये वाला ग्रुप था 2 डिग्री अमाइन वाला, और ये हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है, इसका मतलब ये आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एस। तो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक बार मैं सम अप कर देती हूँ। सबसे पहले हम कायरल कार्बन फाइंड आउट करते हैं। कायरल कार्बन फाइंड आउट करने के बाद हमें डायरेक्टली अटैच एटम्स को प्रायोरिटी असाइन करनी होती है एटॉमिक नंबर वाइज। अगर बाई चांस किसी ग्रुप पर टाई हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट एटम को चेक करते हैं, और फिर सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट एटम को कंपेयर करा था, नेक्स्ट एटम को भी हम कंपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर देते हैं। और नेक्स्ट एटम भी सेम हो जाता है, थर्ड एटम को कंपेयर करेंगे। अभी तक हम सेकंड केस तक ही गए हैं, थर्ड केस आता नहीं है, सेकंड केस तक ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट वाले पे जंप करते हैं इस तरीके से। ऐसे करके हमारे पास नंबरिंग हो जाती है सारे ग्रुप्स की, और जब नंबरिंग हो जाती है फिर हम मूव करना स्टार्ट करते हैं। जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है आर या एस वो आ जाता है। लेकिन फिर हमें पोजीशन भी चेक करनी होती है लो प्रायोरिटी ग्रुप की। अगर हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है तो हम कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, आर है तो एस, एस है तो आर। और इस तरीके से हम किसी भी फिशर प्रोजेक्शन की कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करके ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ओके, सो अब हमें क्लियर हो गया कि कैसे हमने नंबर 2 इस वाले ग्रुप को दिया, ना कि इस वाले ग्रुप को। इस बात से हमें कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स है तो नंबर 2 दे देंगे। हमें नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं, हमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन के अराउंड एक साइड ऑक्सीजन था, एक साइड कार्बन था, जबकि यहाँ पे दोनों साइड ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन का कार्बन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, इस वजह से हमने इसको नंबर 2 दिया। इस ग्रुप को नंबर 3 देंगे, और इसको नंबर 4 देंगे। अब हम कैसे मूव करेंगे, 1 से 2, 2 से 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाना चाहिए था एस, लेकिन क्या ये एस होगा, नहीं, एस नहीं होगा, क्योंकि जो लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है एलपीजी वो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पर है, तो एस ना होके क्या हो जाएगा, आर। लाइकवाइज हम इस वाले कार्बन के लिए चेक करते हैं। ये भी एक कायरल कार्बन है,
तो नंबर 1 इसको मिल जाएगा, जैसे हमने यहाँ किया था बिल्कुल सेम उस तरीके से यहाँ पे होगा। तो नंबर 1 इसको, नंबर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, और नंबर 3 इस ग्रुप को, नंबर 4 इस ग्रुप को। अब हम मूव कैसे करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, ये हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आर होता है, लेकिन यहाँ पे एच हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे प्रेजेंट है, इसलिए आर ना होके ये हो जाएगा एस। तो इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी स्ट्रक्चर की, आर एस। ठीक है, हम ऐसे नॉमेनक्लेचर भी दे सकते हैं, क्यों उसे आर एस नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। लाइक हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। सपोज हमने इस पूरे स्ट्रक्चर की नंबरिंग स्टार्ट करी, तो नंबर 1 इसको मिला, नंबर 2 इसको, ये वो नंबरिंग नहीं है प्रायोरिटी वाली, अलग नंबरिंग है, ये नॉमेनक्लेचर वाली नंबरिंग है। ये नंबर 3 दिया इसको, और इसको हमने नंबर 4 दिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पे आर आ रहा है, 3 पे एस आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लिखेंगे कि 2 पे एस आ रहा है, 3 पे आर आ रहा है। तो इस तरीके से भी नंबरिंग हम इसको दे सकते हैं, इसलिए आर एस नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। अब हम स्ट्रक्चर नंबर 2 देखते हैं। देखो यहाँ पे ये कायरल कार्बन है, देखो बिल्कुल ये इसकी तरह ही है। ठीक है, तो देखो इसको नंबर 1 मिल जाएगा, उसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कराती हूँ। इसको नंबर 2, इसको नंबर 3 और इसको नंबर 4। कैसे मूव करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज। एस होना चाहिए था, लेकिन एच यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, अब इस वाले कार्बन को देखते हैं। नंबर 1 इसको, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। कैसे मूव करेंगे, 1 से 2, 2 से 3। यहाँ पे हम कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एस होता है, लेकिन एस ना होकर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि एच यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है। तो इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, आर आर। अब हम स्ट्रक्चर 3 को चेक करते हैं। ये कायरल कार्बन है, नंबर 1 इसको, देखो सारे कंपाउंड्स बिल्कुल सेम है, बट बस अगर ध्यान से देखो तो ओ एच एच इन सब की पोजिशन थोड़ी डिफरेंट हुई हुई हैं। ठीक है, तो नंबर 3 मिलेगा, 1 2, हाँ नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको, 1 से 2, 2 से 3। कैसे मूव करें, क्लॉकवाइज। तो ये होना चाहिए था आर, बट ये हो जाएगा एस, क्योंकि एच यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। इसको चेक करते हैं, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3, ये हो गया क्लॉकवाइज, आर होना चाहिए था, बट हो जाएगा एस, अगेन हॉरिजॉन्टल पे। अब फोर्थ ग्रुप, 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होता है एस, तो ये हो जाएगा आर। फिर नंबर 1, नंबर 2, 3, 1 से 2, 2 से 3, ये हो जाएगा अगेन, क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज होता है एस, बट ये हो जाएगा आर। एक मिस्टेक है, मैंने गलती से यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया था, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आर होता है, लेकिन यहाँ पे एच हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे, तो ये एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस आर। सो मैंने यहाँ पे एक बार साफ साफ लिख लिया है कि इस वाले कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन आया है वो आर एस आया है, इसका एस आर, इसका एस एस और इसका आर आर। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूल 1 और 2 को आपस में कंपेयर करते हैं। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग कायरल कार्बन्स को आपस में कंपेयर करना है। ये वाला कायरल कार्बन और ये वाले कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यहाँ पे आर था, यहाँ पे एस है। लाइकवाइज इस वाले कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, यहाँ पे एस था, यहाँ पे आर है। तो जब आर का एस हो जाए या एस का आर हो जाए, बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आए, तो वो केस मिरर इमेजेस कंफर्म करता है। देखो एस का आर, आर का एस, तो इससे ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये एनांटियोमर्स हैं, इससे ये कंफर्म हुआ है कि आपस में मिरर इमेजेस हैं। अब जब मिरर इमेजेस कंफर्म हो गई, अब हमें नेक्स्ट स्टेप प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, इस प्लेन के अबाउट चेक करते हैं। देखो ये पूरा अपर पार्ट और ये पूरा लोअर पार्ट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है इस लाइन के अबाउट। तो ये क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब इस वाले कंपाउंड में जिसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं, इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। और ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कायरल सेंटर्स होने के बाद भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, मीज़ो कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये केस ना एनांटियोमर्स का है ना डायस्टीरियोमर्स का है, ये केस अलग ही बन गया है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है ये एक, और ये एक मीज़ो स्ट्रक्चर है। अब हम इस वाले स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। यहाँ पे भी अगर हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, तो इसके अबाउट भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो ये ओवरऑल कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर हमें मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री मिल जाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। अब भले ही उसमें जो सेपरेट पार्ट्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हो, लाइक यहाँ पे कायरल सेंटर्स हैं, उसके बाद भी ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम मीज़ो कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर क्या हो गया, एक मीज़ो स्ट्रक्चर है ये। तो अब हमें अगर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो कि आपस में पेयर है क्या, तो एनांटियोमर्स तो होंगे नहीं, क्योंकि एनांटियोमर्स वो पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिसमें इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
ठीक है, लेकिन ये तो इंडिविजुअली ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये एक्चुअली में आइडेंटिकल कंपाउंड्स हो गए। अब आप सोचोगे कि सपोज़ यहाँ पे हमने एक मिरर ड्रॉ करा, हम इसके अबाउट भी चेक कर सकते हैं। तो हमने एक तरीका तो ये देख लिया चेक करने का कि आर का एस बन गया एस का आर, तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि मिरर इमेजेस हैं। सपोज़ हमने मेथड 1 पे जाएँ जो प्रैक्टिकल मेथड था और इसके अबाउट चेक करें, तो आप देखोगे कि बिल्कुल ही एक इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, अब हम इसे सुपर इम्पोज करा के देखते हैं। तो अब मान लो हमने इस वाले स्ट्रक्चर को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराया, तो जो ओ एच है ये इस एच के ऊपर आ जाएगा, ये ओ एच इस एच के ऊपर आ जाएगा, एज इट इज़ इसको उठा के सुपर इम्पोज कराना है। ठीक है, और इस ओ एच के ऊपर ये एच आ जाएगा, इस वाले ओ एच के ऊपर ये एच आ जाएगा, सी ओ एच ओवरलैप करेंगे, लेकिन फिर मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाएगी। मिरर इमेजेस तो हैं बट नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे। सो प्रैक्टिकली हमें पता चला कि आपस में मिरर इमेजेस हैं और ऊपर से नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। फिर तो इनैंशियोमर्स होने चाहिए थे, यही डाउट आ रहा होगा। बट लेकिन इनैंशियोमर्स तब होते हैं जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। जब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, अभी आपस में आइडेंटिकल हो गए, तो इनैंशियोमर्स नहीं हुए आपस में। अच्छा, ये भी नहीं कि कोई भी दो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स आपस में आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल इस सेंस में हुए कि अगर आप इस वाले को चेक करो तो ये जस्ट इसका रोटेटेड फॉर्म है, ये और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, इसको जस्ट स्पेस में रोटेट करके रख दिया गया है। जब दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है और उसको अगर मतलब रोटेट करके इसके ऊपर सुपर इम्पोज करोगे तो एक्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाएगा, ये आइडेंटिकल है आपस में। ऐसा लग रहा है कि इनैंशियोमर्स है लेकिन इनैंशियोमर्स नहीं है। ठीक है, तो पेयर 1 और 2 के बीच का रिलेशन क्या हो गया कि ये आइडेंटिकल है। अब मॉलिक्यूल 3 और 4 को चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग कायरल कार्बन्स की कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो चुकी है, लाइकवाइज यहाँ पे भी। तो ये केस किसका हो गया? अगेन ये केस किसका हो गया कि आपस में मिरर इमेजेस है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना। इस प्लेन के अपर साइड एच है, लोअर साइड ओ एच है, इस साइड अपर साइड ओ एच है, लोअर साइड एच है, तो ये क्या सिमेट्रिकल है? नहीं, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है ना इस लाइन के अबाउट। अगर यहाँ पे ओ एच है तो यहाँ ओ एच होना चाहिए था सिमिलर होने के लिए, यहाँ पे एच है तो यहाँ एच होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है? ये ऑप्टिकली, ये कायरल सेंटर था, ये कायरल सेंटर है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ नहीं मिली, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इस वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी तो इसके अबाउट भी ये क्या है? बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, डिसिमिलर है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ भी नहीं मिली। ये मॉलिक्यूल भी क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्लियर हो रहा है कि क्या डिफरेंस था जो स्ट्रक्चर 1 और 2 था और स्ट्रक्चर 3 और 4 है। स्ट्रक्चर 1 और 2 में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई थी तो ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया था, इसलिए मीजो कंपाउंड। बट यहाँ पे तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली ही नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब जब ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो गए तो हो सकता है आपस में इनैंशियोमर्स है, तो अब हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमारी पहली कंडीशन जो थी एस का आर बन गया, आर का एस बन गया, उससे हमें पता चला कि आपस में मिरर इमेजेस हैं, वो भी फुलफिल हो गई। तीसरा, हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखो मेथड 1 से भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने एक मिरर ड्रॉ करा तो देखो यहाँ पे ओ एच है, यहाँ ओ एच है, यहाँ एच एच ओ एच, तो रिलेटिव पोजीशन में बिल्कुल इक्वल है मिरर के अबाउट, तो ये मिरर इमेजेस आपस में है। अब अगर इसको उठा के मैं इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराऊँ तो ओ एच एच के ऊपर आ जाएगा, ये एच ओ एच के ऊपर आ जाएगा, मतलब सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, तो ये क्लियरली क्या हो गए? और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो क्या हो गए? इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मिरर इमेज भी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है और इंडिविजुअली इनमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए ये हो गए इनैंशियोमर्स। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूल 1 और 2 में क्या दिक्कत आ रही थी? प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से डिफरेंस आ रहा था, बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए वो इनैंशियोमर्स है। अब हम लिख लेते हैं एक बार कि कौन सा पेयर क्या है। तो देखो इनैंशियोमर्स में कौन कौन आ गया? 3 और 4। मीजो कंपाउंड्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए? 1 और 2। और आइडेंटिकल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? 1 और 2। ठीक है, तो 1 का 2 से रिलेशन निकल गया एंड 3 का 4 से निकल गया। अब हम 1 का 3 के साथ रिलेशन देखते हैं, हर एक इंडिविजुअल कंपाउंड का दूसरे के साथ देखेंगे। तो देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ से कंपेयर कर रही हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो इस वाले कायरल कार्बन का आर है, यहाँ पे एस आई है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, तो देखो एक कायरल कार्बन कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दूसरे की चेंज हो चुकी है, तो ये केस कौन सा होता है? डायस्टीरियोमर्स का। तो क्लियरली जो मॉलिक्यूल 1 है और मॉलिक्यूल 3 है वो आपस में डायस्टीरियोमर्स हो गए।
ये डायरेक्ट एक शॉर्टकट है जो हम ध्यान रख सकते हैं। तो क्लियरली जब भी डायस्टीरियोमर्स हो गए हम खुद से एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपस में नॉन मिरर इमेजेस हो गए। अगर चेक करना तो चेक भी कर सकते हो 1 और 3 को आपस में, यहाँ पे OH यहाँ पे OH आ रहा है मिरर के पास, बट अगर इसको हम इग्नोर करके इसके साथ चेक करेंगे तो यहाँ एक साइड OH एक साइड H, तो मिरर इमेजेस भी नहीं है, तो हमारा जो एस्टिमेशन है वो राइट आया। अब हम 1 के साथ 3 हो गया, अब 1 को 4 के साथ चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, यहाँ पे R है। एक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन सेम, दूसरे सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, तो ये केस भी हो गया डायस्टीरियोमर्स का। तो 1 का हर एक के साथ कंपेयर हो गया है 2, 3, 4 के साथ। अब 2 को कंपेयर करते हैं 3 के साथ। तो देखो यहाँ पे S है, यहाँ पे S, यहाँ पे R, यहाँ पे भी S। तो यहाँ पे एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम, एक की डिफरेंट, ये केस भी हो गया डायस्टीरियोमर्स का। अब 2 और 4 को आपस में चेक करते हैं। यहाँ पे S, यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे R, एक कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन सेम, दूसरे के डिफरेंट, ये केस भी डायस्टीरियोमर्स का हो गया। तो इस तरीके से हमने हर पेयर का आपस में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया है। अब हम देखते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर कौन कौन से पेयर बनाएंगे आपस में। तो रेसिमिक मिक्सचर की कंडीशन क्या है? इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, लेकिन जब उन्हें हम आपस में मिक्स करें, उनका एक मिक्सचर बनाए, तो वो ओवरऑल जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाना चाहिए अगर 100% रेसिमाइजेशन है तो। सो मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट डाउन करो कि कौन सा पेयर रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इनका तो ये तो हो ही नहीं सकते, ये तो रेसिमिक मिक्सचर बना ही नहीं सकते। 3 और 4 को चेक करते हैं, ये दोनों आपस में ऑप्टिकली एक्टिव हैं और यही आपस में क्या बनाएंगे? रेसिमिक मिक्सचर। तो एनान्शियोमेरिक पेयर ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, सपोज ये लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है, ये लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, बट जो नेट रोटेशन आएगी इस पूरे मिक्सचर की वो 0 हो जाएगी अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 100% रेसिमाइजेशन है। ऐसा केस भी हो सकता है कि सपोज़ ये लाइट को राइट साइड ज़्यादा रोटेट कर दे, इसका इफेक्ट ज़्यादा है, सपोज 75% रोटेटिंग इफेक्ट है, बट ये जो लेफ्ट साइड में रोटेट कर पा रहा है इसे 25% रोटेट कर पा रहा है, तो 25% लेफ्ट रोटेशन और 25% राइट रोटेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो नेट रोटेशन क्या बचेगी? 50% राइट साइड। तो ओवरऑल मिक्सचर जो होगा ना वो 50% लाइट को राइट साइड रोटेट कर देगा, बट यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि 50% ये राइट साइड रोटेट कर रहा है, 50% लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, तो ओवरऑल जो नेट रोटेशन हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, इसलिए ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। तो रेसिमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि डोमिनेटिंग मॉलिक्यूल का इफेक्ट क्या आ रहा है, बट यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, तो यहाँ पे जो एनान्शियोमेरिक पेयर है वो एक रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। तो इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए। ओके, बाय द वे अगर आपने नोटिस किया हो तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो टार्टरिक एसिड के स्ट्रक्चर्स हैं। ये टार्टरिक एसिड इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है जो कि मीसो फॉर्म है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में और इस फॉर्म, चारों फॉर्म में टार्टरिक एसिड एग्जिस्ट करता है। सो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो एंड करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट करते हैं। सो ये फाइनली लास्ट पार्ट है वीडियो का जहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट के साथ अपने वीडियो को एंड करेंगे। एल्केन की प्रिपरेशन मेथड या फिर एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ में हमें एक टॉपिक देखने को मिलता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और इसमें 2 केसेस बनते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन करा सकते हैं और दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन में। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन हमने लिया है। कैसे हमने फाइंड आउट करें कि सिमेट्रिकल एल्कीन है? देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, इसके अबाउट ग्रुप्स को चेक करना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगर अबाउट यहाँ पे CH3 और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, सिमिलरली यहाँ पे भी फिनाइल और CH3 ग्रुप है, अगर दोनों साइड सेम ग्रुप्स हो तो फिर वो सिमेट्रिकल एल्कीन होता है। लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट पोजीशन पर है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस, तो ट्रांस हो गया। मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन में हमने एक ट्रांस एल्कीन का एग्जांपल लिया है और सिमेट्रिकल एल्कीन में ही हमने एक सिस एल्कीन का एग्जांपल लिया है जहाँ पे CH3 CH3 या फिनाइल को भी चेक कर सकते हैं, सेम साइड है। अगर 2 ग्रुप सेम साइड है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तो सिस, और 2 ग्रुप्स ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। और सिमेट्रिकल क्यों है वो हमने देख लिया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो साइड में जो ग्रुप्स हैं वो सेम है। अगर यहाँ पे CH3 और फिनाइल है तो यहाँ पे भी CH3 और फिनाइल है। ठीक है, तो अब हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड पे जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, करते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एग्जांपल है सिन एडिशन का। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन में हम सिन एडिशन करते हैं तो हमें मीजो कंपाउंड देखने को मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांस और सिस 2 फॉर्म में डिवाइडेड है। तो जब हम ट्रांस एल्कीन में सिन एडिशन करेंगे तो यहाँ पे हमें रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, और जब सिस एल्कीन में हम सिन एडिशन करेंगे तो हमें मीजो कंपाउंड देखने को मिलेगा। अभी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या बनता है वो भी देखते हैं। देखो मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करना सिखाती हूँ। यहाँ पे ये मान लो हमने एक लाइन में ले लिया, ये पूरा पार्ट हमने एक लाइन में ले लिया, तो इसे कैसे लिखेंगे देखो।
ठीक है। तो हमने पूरा वर्टिकल लाइन पे ले लिया। हम CH3 भी ले सकते हैं, बट हमें सिनेडेशन शो करना है तो हम इसे साइड में लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ये ट्रांस में लगा हुआ है तो CH3 अगर इधर है, दूसरा CH3 इधर आ जाएगा। अब ऐसा एक सिमिलर स्ट्रक्चर और बन सकता है जहाँ पे एक CH3 है, एक CH3 है, वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हम सिनेडेशन करते हैं। तो देखो जब हम सिनेडेशन करेंगे तो सिनेडेशन में क्या होता है कि जहाँ पे भी जगह बचती है वहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस वाले स्ट्रक्चर में भी जहाँ भी जगह बचेगी वहाँ पे ऐड करते हैं। सिनेडेशन मतलब होता है सेम साइड एडिशन, लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो जहाँ पे जगह बचती है वहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। फिलहाल आप ये समझ लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये आपस में इनका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे RS फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी देख सकते हैं। देखो ये इमेज और ये इमेज एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज है। देखो यहाँ पे CH3 H यहाँ पे अगर हम मिरर ड्रॉ करें तो एग्जैक्टली एक दूसरे के मिरर इमेज है। और जब हम इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करते हैं तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल। लेकिन अभी हम इन्हें एंशियोमर्स नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पहले चेक करनी पड़ेगी। तो मान लो मैंने यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करा। अब इस प्लेन के अबाउट चेक करो, यहाँ पे CH3 आ रहा है, यहाँ पे H आ रहा है। फिनाइल फिनाइल ये तो सिमेट्रिकल है, बट ये पार्ट अनसिमेट्रिकल है। तो मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है अनसिमेट्रिकल हो गया। सिमिलरली ये भी अनसिमेट्रिकल है इस प्लेन के अबाउट। मतलब ये हमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पा रही है। तो फिर ये आपस में क्या हो गए, एनांशियोमर्स। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाती तो क्या हो जाते, फिर तो मीजो कंपाउंड्स जाते ना ये। जैसे हमने टार्टरिक एसिड के केस में देखा था, तो ये एनांशियोमर्स हो गए। और एनांशियोमर्स के मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम सिमेट्रिकल एल्कीन में ट्रांस एल्कीन को लेते हैं, ये ट्रांस है ना, CH3 ऑपोजिट साइड आ रहा है, फिनाइल को भी चेक कर सकते हैं। तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन में हम ट्रांस एल्कीन को लेते हैं तो वो हमें रेसमिक मिक्सचर देता है। अब इसे ड्रॉ करने की कोशिश करो। फिनाइल इधर, एक फिनाइल इधर। अब दोनों CH3 सेम साइड है तो एक CH3 हमने मान लो इधर लिया, दूसरा CH3 भी हम इसी साइड लेंगे। अब हमने जब दोनों CH3 इस साइड ले लिए तो एक और स्ट्रक्चर बन सकता है जहाँ पे CH3 इस साइड हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत करना, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो एक स्ट्रक्चर ये बन गया, एक स्ट्रक्चर ये बन गया। अब हम सिनेडेशन करते हैं, हो रही है तो यहाँ पे कर देते हैं आराम से। हाइड्रोजन ऐड कर दिया हमने, ठीक है। अब हम इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमने इसके बीच में एक मिरर ड्रॉ करा तो देखो यहाँ पे ये बिल्कुल इसकी क्या है, मिरर इमेज है। अब जो हम इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये CH3 H को ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। बट एक बार प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हमें चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम प्लेन ड्रॉ करते हैं। अब देखो इस प्लेन के अबाउट CH3 सेम, H सेम, फिनाइल फिनाइल सेम। तो इसके अबाउट ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। और ये क्या थे, ये कायरल सेंटर्स थे। कायरल सेंटर्स होने के बाद भी ये क्या हो गए, सॉरी ये है ना, हाँ ये कायरल तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ। तो कायरल सेंटर्स होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया मॉलिक्यूल ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या हो गया फिर, ये हो गया मीजो कंपाउंड। अब इसको भी देख लो, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी तरह ये भी एक मीजो कंपाउंड है। फिनाइल फिनाइल CH3 H, तो ये भी क्या हो गया, मीजो कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो हमने यही बोला था सिमेट्रिकल एल्कीन में अगर हम सिस फॉर्म लेते हैं, सिस फॉर्म का अगर हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें मीजो कंपाउंड देखने को मिलता है। और अगर सिमेट्रिकल एल्कीन में हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो रेसमिक मिक्सचर मिलता है। अब यहाँ पे ना हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया है। कैसे पता चला, देखो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है इस कार्बन के साइड, और इस कार्बन के साइड एक साइड मिथाइल ग्रुप है, एक साइड इथाइल ग्रुप है। तो अलग अलग ग्रुप है ना दोनों साइड, तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब हम इसका फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो देखो हम इस पूरे को जो भारी भारी ग्रुप्स है वो हम एक लाइन पे ले सकते हैं। ये हमने सपोज एक लाइन पे ले लिए। यहाँ पे मैं ET लिख लेती हूँ। ET इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है ना ET, और ये क्या है, ये MT है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड मिथाइल ग्रुप यहाँ पे ये ले लिया, MEMT कुछ भी लिख सकते हो वैसे, ठीक है। और देखो ये CH3 ऑपोजिट साइड है तो एक मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा। एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है कि मिथाइल एक यहाँ आ जाए, दूसरा मिथाइल यहाँ पे आ जाए, तो वो भी बना ही लेते हैं। एल्कीन कैसा भी हो, सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हमेशा सिनेडेशन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, जहाँ भी जगह बचेगी हम वहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। देखो अब चेक करो मिरर इमेजेस हैं या नहीं, तो बिल्कुल ये आपस में मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस तो यहाँ आपस में है। नेक्स्ट कंडीशन, सुपर इम्पोज हो रही है नहीं हो रही, उठा के इसको देखो क्या सुपर इम्पोज हो रही है, नहीं ये
नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल हो रही हैं, लेकिन एक बार प्लेन ऑफ सिमेट्री से हम ये चेक करते हैं कि एनांटियोमर्स होंगे या नहीं। प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करिए दोनों में। मिथाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल, फिनाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप, बिल्कुल भी सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, मतलब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिनाइल और इथाइल ग्रुप डिफरेंट हो गए ना, इन दोनों को चेक कर सकते हो आपस में, ये भी आपस में डिफरेंट हो गए, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये क्या हो गया, ये हो गए इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स और इनैंशियोमर्स का अगर इक्विमोलर मिक्सचर हो तो ये क्या बना देगा, रेसमिक मिक्सचर। मतलब दोनों अगर सेम क्वांटिटी में हो तो क्या बना देगा, रेसमिक मिक्सचर। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सपोज इस वाले आइसोमर की क्वांटिटी ज़्यादा है मिक्सचर में, तो ये क्या करेगा, ये अपना डोमिनेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। सपोज ये लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है, तो ये ज़्यादा रोटेट करेगा ना, अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो जो नेट रोटेशन आएगी लाइट की वो राइट साइड ही चली जाएगी। सिमिलरली अगर ये ज़्यादा है मॉलिक्यूल में तो ये अपनी तरफ रोटेट कर लेगा। तो डिपेंडिंग ऑन की रोटेशन किस साइड हो रही है, रेसमिक मिक्सचर में ऑप्टिकल एक्टिविटी फिर भी थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन अगर बिल्कुल इक्विमोलर मिक्सचर होता है तो फिर रेसमिक मिक्सचर एकदम ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर आपको ये पार्ट थोड़ा सा टिपिकल लगा, कैसे अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्कीन सिन एडिशन से हमें इनैंशियोमर्स या फिर मीजो कंपाउंड्स यील्ड करते हैं, तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। बट वैसे देखना तो आ गया होगा कि कैसे हमें पता लग रहा है कि कौन से पेयर इनैंशियोमर्स है, कौन से मीजो कंपाउंड है, कौन सा रेसमिक मिक्सचर बना रहे हैं। तो मेन मोटिव इस वीडियो का यही था। जो सिन और एंटी एडिशन है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, जो डिफरेंट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट फिलहाल के लिए इनैंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और आइडेंटिकल आइसोमर्स के बीच में अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। Well, no questions now. Just wanna thank you for your patience. Don't forget to write your reviews in the comment section below. समझ आया तो भी बताना, नहीं आया तो भी बताना, लाइक भी कर देना यार। Until then, happy studies.